OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your chemistry class and we are reading the chapter acid, bases and salts. In previous few sessions, we have discussed the properties of acids, types of acids, properties of bases, types of bases, as well as we have discussed about salts also. In this session, we are going to discuss how many types of salts are there that we have to study in this chapter. Let's get started. So, what are salts? Salts are the ionic compound which is produced after the neutralization reaction between acid and base. Salt क्या है? क्या लिखा है यहाँ पे? They are the ionic compound. They are the ionic compound and are produced after the neutralization reaction between acid and base. We have already studied that whenever an acid reacts with base, it will form salt and water, right? We have studied that. So this whole reaction is known as neutralization reaction. This whole reaction is known as neutralization reaction. That is why it is written here that salts are made from neutralization reaction. And salts are ionic compounds. What do you mean by ionic compounds? Suppose here the acid which we have taken is hydrochloric acid and the base which we have taken is NaOH. Then the salt that will be formed is NaCl plus H2O, right? अगर हम NaCl को जरा गौर से देखें तो NaCl का जो कंपाउंड है वो कब बनता है? जब सोडियम जो है अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को डोनेट कर देता है. क्या कर देता है? क्लोरीन को डोनेट कर देता है. सोडियम के पास जो है प्लस चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के पास इस तरीके से माइनस चार्ज आ जाता है. Thus there is a force of attraction between sodium and chlorine and thus the compound that is formed is NaCl and this compound is known as ionic compound. Next point is salts are electrically neutral. Salt क्या होते हैं? इन्होंने क्या कहा? Salts are electrically neutral. तो salt जो electrically neutral क्यों होते हैं? Because for example अगर हम यहाँ देखें तो सोडियम जब आयन फॉर्म में था उस पर पॉजिटिव चार्ज था, क्लोरीन जब आयन फॉर्म में था तो उस पर नेगेटिव चार्ज था. बट जब भी सोडियम और क्लोरीन एक साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं, दे हैव नो चार्ज एट ऑल ऑन देम. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. There are number of salts, but sodium chloride is most common among them. So there are number of salts. बहुत सारे salts. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सोडियम क्लोराइड ही है, but sodium chloride that is NaCl is common. क्यों common है? Because ये ज्यादातर जो है हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होता है. सोडियम क्लोराइड को हम टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज टू एनहांस द टेस्ट ऑफ फूड. इट जनरली एनहांसेस द टेस्ट ऑफ फूड. बिना नमक का खाना किसी को पसंद नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज समथिंग अबाउट सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन सॉल्ट. तो सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला NaCl है उसे हम कॉमन या टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो अगेन द कॉमन सॉल्ट दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दैट मीन्स HCl plus NaOH and thus the common salt that is NaCl and water is formed. ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉर्म होता है. It is a neutral salt. We have already read that there are many types of salt. ठीक है, सॉल्ट के कई टाइप्स हमने पढ़े हैं. कौन कौन से पढ़े हैं? एसिडिक सॉल्ट पढ़ा है और क्या पढ़ा है? बेसिक सॉल्ट पढ़ा है. And we have also studied about the neutral salt, right? So here it is written that NaCl is a neutral salt
Why is it so? Acidic salt is formed when strong acid and weak base reacts. Okay, basic salt is formed when weak acid and strong base reacts, whereas neutral salt is formed when strong acid and strong base reacts together. So here strong acid and strong base is reacting together to form NaCl. That is why it is known as a neutral salt. Okay, because it is a neutral salt, so its pH value is 7. Okay, हमने लास्ट सेशन में बात की थी पीएच पेपर के बारे में, हमने बात की थी यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दैट any solution, if it is neutral in nature, if any solution is neutral in nature, then its pH will be around 7. Because we are saying here that the salt, the common salt is neutral in nature, that is why its pH range is 7, right? Sodium chloride is used to enhance the taste of food. ये हमने पिछले स्लाइड में भी अभी डिस्कस किया, that जो नमक है हमारा, वो हमारे फूड के का जो टेस्ट है उसे एनहांस करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी केमिकल्स. सोडियम क्लोराइड जो है बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है. द पॉइंट इज कि सोडियम क्लोराइड हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा, हाउ इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, इसका पीएच लेवल 7 है. प्लस नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी अदर केमिकल्स. लेट अस जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड. Important chemical from sodium chloride. Sodium chloride is used to make many different types of chemicals from itself. Let us see this process in detail. Sodium hydroxide. सोडियम क्लोराइड से हमें क्या मिल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है. What is a sodium hydroxide? Sodium hydroxide is a strong base. We have already discussed about the weak bases and strong bases. So sodium hydroxide is a strong base and is also known as caustic soda. The general name for sodium hydroxide is caustic soda. It is obtained by electrolytic decomposition. In the first chapter we have read about the decomposition reaction and we have also discussed the electrolytic decomposition. Okay, so यहाँ पे किसका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज नोन एज ब्राइन. यहाँ पे एक सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, उसको हम ब्राइन कहते हैं. ब्राइन कुछ अलग नहीं है, दिस इज जस्ट व्हेनेवर सोडियम क्लोराइड is mixed with water, okay, then this aqueous sodium chloride is known as brine solution. ठीक है, इसी का नाम जो है वो ब्राइन सॉल्यूशन है. नाउ द थिंग इज व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है. क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है. दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड इज बीइंग डिकम्पोज्ड. बट जनरली क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है कि सोडियम क्लोराइड का अगर एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन मतलब इट इज ऑलरेडी मिक्स्ड विद वाटर एंड इफ इट इज डिकम्पोजिंग it will decompose into sodium metal and chlorine gas, right? यही पढ़ा है हमने. लेकिन एक्चुअली में हम कह रहे हैं यहाँ पे कि NaCl का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, बट यहाँ पे क्लोरीन गैस तो निकल रही है, पर सोडियम जो है वो सोडियम मेटल के फॉर्म में नहीं निकल रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है, यही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमने इस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस जो हम प्रोसेस कर रहे हैं हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है किसका? हमने यहाँ पे सैचुरेटेड ब्राइन का सॉल्यूशन लिया है. क्या लिया है? सैचुरेटेड ब्राइन का सॉल्यूशन लिया है. व्हाट इज सैचुरेटेड ब्राइन? दैट इज NaCl मिक्स्ड विद वाटर, और वी कैन से NaCl इन द एक्वस फॉर्म वी हैव टेकन हियर. ओके, यहाँ पे देखिए रिएक्शन भी लिखी हुई है.
NaCl प्लस वाटर, हमने सोडियम क्लोराइड और वाटर का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है और हमने इसको इस चेंबर में रखा है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन 2 इलेक्ट्रोड्स. One is anode electrode and the second one is cathode electrode. Cathode electrode is negatively charged whereas anode electrode is positively charged. Now what will happen when we supply the electricity through this solution? What will happen? Sodium chloride, here the sodium chloride in aqueous form will decompose into sodium ions and chlorine ions. So what will happen? Chlorine ions will move to anode. Why so? Because anode is positively charged and chlorine is negatively charged and the opposite charge attracts each other. So what will happen? So chlorine ions will move to anode. Being positively charged, what reaction will happen on anode? Suppose on the anode chlorine ion went. Okay, chlorine ion will go to the anode and chlorine ion will donate its extra electron. यहाँ पे देखिए क्लोरीन पे जो है नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास जो है एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड के पास डोनेट करके खुद क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट, खुद क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये एनोड पे जो है देखिए यहाँ पे जो है क्या निकल रही है, क्लोरीन गैस निकल रही है. Now because NaCl is being decomposed into sodium ions as well, so what will happen, where will sodium ions go? Sodium ions will go on the cathode. So in the cathode side, what will happen in the cathode side? Sodium ion will go on the cathode side. So here sodium ion के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, that is why सोडियम पर जो है प्लस का चार्ज है. ठीक है, सो बीइंग कैथोड नेगेटिवली चार्ज इट विल गिव सोडियम आयन एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम आयन जो है कैथोड से एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म सोडियम मेटल. नाउ दिस सोडियम मेटल दैट इज फॉर्म्ड हियर विल रिएक्ट विद वाटर. सोडियम मेटल जो है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूशन है ना, NaCl के साथ हमने वाटर भी मिलाया है, तो ये सोडियम मेटल जो है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब फॉर्म करेगा NaOH. क्या फॉर्म करेगा? NaOH. और क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन फॉर्म करेगा. ठीक है, तो जब भी हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें 3 चीजें मिलती हैं. क्या क्या मिलती हैं? एक हमारी क्लोरीन गैस मिलती है जो कि एनोड पे रिलीज हो रही है, एक हमारी हाइड्रोजन गैस मिलती है जो कि कैथोड पे रिलीज हो रही है, और एक हमारा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है. ठीक है, जो कि कब बनता है? जब सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है. कब बनता है? जब सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा होता है. So now you can see that how a brine solution can be decomposed to form hydrogen, chlorine and sodium hydroxide. Now because these chemicals are formed, in the next slide we are going to discuss the function of these chemicals, like how chlorine is beneficial to us, how hydrogen is beneficial to us, as well as how sodium hydroxide is beneficial to us. Let us jump to the next slide. So now we are going to discuss the use of products after the electrolysis of brine. We have done the electrolytic decomposition of the brine solution and we have obtained some of the chemicals like hydrogen, chlorine and sodium hydroxide. Now how this hydrogen, chlorine and sodium hydroxide is beneficial to us, what are their functions, we are going to discuss in this slide. So let us get started. Now the first chemical that is obtained to us is hydrogen. Here it is chlorine, here it is sodium hydroxide. Okay, so now hydrogen can be used as fuels in the industrial processes but not in the household. Why so? Because hydrogen being highly flammable gas
तो ये जो है वो फ्यूल्स जो है सिर्फ इंडस्ट्रियल फ्यूल्स में ही हाइड्रोजन गैस जो है वो यूज हो सकती है. ओके, नेक्स्ट इज मार्गरीन. मार्गरीन इज द टाइप ऑफ फैट. सो हाइड्रोजन इज यूज्ड टू make the margarine or used to form the margarine. Hydrogen is also used to form the ammonia for the fertilizers. Now, how hydrogen is used to form the ammonia? Ammonia is formed when nitrogen and hydrogen reacts together. What is it formed? It forms ammonia, and ammonia is a widely used fertilizer. So hydrogen can be used to in the formation of ammonia. Next we come to the chlorine. Chlorine has disinfectant properties. Chlorine kills the germs. So chlorine is widely used in the water treatment. In the swimming pools, chlorine is used to disinfect the water of swimming pools. It is used as disinfectants as well as in the pesticides that kills pests in the fields. Okay, whereas chlorine is also used in PVCs and CFCs. What is PVC? PVC का full form है polyvinyl chloride. It is a type of plastic which is very hard in nature, right? एंड CVC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपने नाम सुना होगा. इन प्रीवियस फ्यू इयर्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वर यूज्ड. Chlorofluorocarbons was used in the refrigerators as well as in the air conditioners, and it is also responsible for the ozone depletion. Okay. Next we come to sodium hydroxide. Sodium hydroxide is used to degrease the metals. Metals में generally grease जम जाता है, तो उन metals को साफ करने के लिए हम sodium hydroxide का use करते हैं. Sodium hydroxide is used in soaps and detergents, in making soaps and detergents, in paper making as well as in artificial fibers. Okay, so this was the individual function of hydrogen, chlorine and sodium hydroxide respectively. Now let us see what will happen when hydrogen and chlorine are combined together or reacts together. So whenever hydrogen and chlorine reacts together, they form hydrochloric acid. क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन बी यूज्ड फॉर स्टील क्लीनिंग एंड कैन बी यूज्ड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड. अब अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है HCl से? व्हेनेवर अमोनिया रिएक्ट्स विद HCl, इट विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड. क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4Cl. Whereas hydrochloric acid is also used in some of the medicines and cosmetics. Okay. Next, what will happen if we add or if we react the sodium hydroxide and chlorine together? A bleach will formed. Okay, so bleach का क्या काम होता है? Household bleaches में काम आता है और फैब्रिक को ब्लीच करने के काम आता है. So this whole process is known as क्लोर एल्कलाई प्रोसेस. ये जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन था, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोर एल्कलाई. व्हाई इट इज नोन एज क्लोर एल्कलाई? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन निकल रहा है. ठीक है, क्या निकल रहा है यहाँ पे? क्लोरीन निकला. और क्या निकला? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड निकला. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एल्कलाइन, क्लोरीन से बना क्लोर. सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कलाई process. Okay, so the final reaction of chlor-alkali process will be NaCl plus 2H2O, that will give out 2NaOH plus chlorine gas plus hydrogen gas. Okay, let us jump to the next slide. Let us see what is in the next slide. So here the next type of salt is bleaching powder, which has the formula of CaOCl2. तो CaOCl2 ये केमिकल फॉर्मूला दिया है, पर इसका केमिकल नेम क्या होगा? Ca से क्या बनेगा? कैल्शियम. देन O stands here for oxy and Cl2 stands here for chloride, right?
So the chemical name of bleaching powder is calcium oxychloride. So bleaching powder is also known as chloride of lime. It is a solid and yellowish white. ये जो है बिल्कुल white नहीं होता है, थोड़ा yellowish white होता है. Bleaching powder can easily be identified by the strong smell of chlorine. Chlorine has a very pungent smell. एकदम दूर से smell आती है. तो ब्लीचिंग पाउडर में क्योंकि क्लोरीन एडेड है तो क्लोरीन की स्मेल से हम ब्लीचिंग पाउडर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, हाउ इट इज फॉर्म्ड? व्हेनेवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज आल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम, जिसका फॉर्मूला CaOH होल टॉइस होता है, जब भी वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, whenever it reacts with chlorine, it forms a powder that is called calcium oxychloride. In common terms, we call it as a bleaching powder and water is formed. तो इस तरीके से जो है इस रिएक्शन से this particular reaction that is given in the slide is called the preparation reaction of bleaching powder. This is very important for you. So always remember this reaction. Okay, now let us see what are the uses of bleaching powder. So the use of bleaching powder is used as disinfectant. Disinfectant क्यों करते हैं? क्योंकि bleaching powder में क्या पाया जाता है? क्लोरीन पाया जाता है. क्लोरीन has the disinfectant property. ठीक है, सो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है, वाटर को क्लीन करने के लिए, मॉस रिमूवर के लिए यूज किया जाता है और वीड किलर्स के लिए भी यूज हम करते हैं. ब्लीचिंग पाउडर हैज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल इन इट दैट इज क्लोरीन. क्लोरीन के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करे, जर्म्स को किल करने का काम वो करता है. दैट इज व्हाई ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो used for the same purpose. Okay, next is bleaching powder is used for bleaching the cotton textile industry. Cotton की जो textile industries होती हैं उसमें ब्लीच करने के काम आता है. इनफैक्ट वुड पल्प इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, इन सारे ही चीजों में जहां पे भी ब्लीचिंग की जरूरत पड़ती है ये काम आता है. Bleaching powder is used as an oxidizing agent in many industries such as textile industry, paper industry, etc. Bleaching powder जो है एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. दैट इज वाई जहां पे भी जिन इंडस्ट्रीज में, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, पेपर, वुड इंडस्ट्री, जहां पे हमें एक अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड देयर. ओके, let us jump to the next type of salt, that is baking soda. So here हम baking soda को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. So next, baking soda is another important product which can be obtained using byproducts of chloralkali process. ठीक है, जो हमारे chloralkali process के byproducts हैं जैसे कि क्लोरीन, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मेन जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे ही बेकिंग सोडा बनता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज NaHCO3. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3 एंड द केमिकल नेम विल बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, और वी कैन ऑल्सो से सोडियम बाइकार्बोनेट. Okay, so next is preparation method. Baking soda is obtained by the reaction of brine with carbon dioxide and ammonia. ठीक है, brine क्या था हमारा? brine solution क्या था यहाँ पे? जैसे कि NaCl और water को जब हम एक साथ मिलाते हैं, we obtain the brine solution here, right? So whenever we react the brine solution with carbon dioxide and ammonia, it will form ammonium chloride and also form sodium bicarbonate. तो यही sodium bicarbonate is known as baking soda. Okay, in this process calcium carbonate is used as source of CO2. यहाँ पे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट से. ये कैसे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट whenever it decomposes, okay, so whenever calcium carbonate decomposes, it will decompose into calcium oxide and CO2. so ये जो कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 निकलता है वो CO2 जो है वो यहाँ आता है, and then the resulted calcium oxide is used to recover ammonia from
अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये जो बचा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये अमोनिया को निकालने में हेल्प करता है, अमोनिया को रिकवर करने में हेल्प करता है अमोनियम क्लोराइड से। ओके, सो दिस होल प्रोसेस इज नेम्ड एज सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। जैसे उसका नाम था क्लोर अल्कली प्रोसेस, वैसे ही इसका भी नाम है सॉल्वे प्रोसेस, राइट। So the next is properties of sodium bicarbonate. Okay, so sodium bicarbonate is white crystalline solid. It is actually white crystalline solid. If we see in the terms of chemistry, तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? जिसके जो आयंस होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं। तो ऐसे सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। पर ये जो अपीयर होता है वो पाउडर्ड फॉर्म में अपीयर होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक इन नेचर? एम्फोटेरिक मीन्स इफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड it will act as a base and form salt. If sodium hydrogen carbonate reacts with base, it will act as an acid and then also it forms salt. तो जब भी वो एसिड और बेस दोनों तरीके से बिहेव कर सके तो हम कहते हैं that it is amphoteric in nature. Next, sodium hydrogen carbonate is sparingly soluble in water. That means कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम रेडिली सॉल्युबल नहीं है, बहुत हल्का सा सॉल्युबलाइज होता है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड इट डिकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो व्हाट हैपेंस हियर कि बेकिंग सोडा जब भी हीट करेंगे हम, हमारे पास ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको जब हमने हीट किया तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है और वाटर जो है वो अलग हो जाता है। नाउ सोडियम कार्बोनेट दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द थर्मल डिकम्पोजिशन of sodium hydrogen carbonate, it decomposes into sodium oxide, carbon dioxide and further heating, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट हमारा बन गया। सोडियम कार्बोनेट अगर उसको हम और ज्यादा हीट करते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम ऑक्साइड, और उसका जो कार्बोनेट का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाएगा, ठीक है। अगेन सोडियम कार्बोनेट को जब हम और हीट करेंगे देन इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस होल रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन में अगर आप ध्यान दीजिए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हीट कर रहे हैं हम तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ पे हमारा वाटर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, यहाँ पे वाटर निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रेशन, जब वाटर की कमी हो जाती है तो क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। सो दिस होल रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट वी कम टू यूज ऑफ बेकिंग सोडा। कहाँ कहाँ बेकिंग सोडा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सो बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। दो तरीके की चीजें आती है, एक बेकिंग सोडा और एक बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज समवट बेटर देन बेकिंग सोडा बट बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू प्रिपेयर द बेकिंग पाउडर। तो पहली चीज तो ये हो गई कि बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन में काम आता है, प्लस यहाँ पे जो बैटर होता है, जो केक्स होते हैं उनको फ्लफी बनाने में जो है वो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। कैसे, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है एंड ड्यू टू दिस रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द बैटर गेट्स फ्लफी। ओके, सो द नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटासिड। बेकिंग सोडा जो होता है वो एक एंटी एसिड के यूज में आता है। मतलब जो हमारा एसिड होता है, पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो जब बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, सो वी टेक द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस सेशन की जो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, दैट इज अ माइल्ड बेस। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है, माइल्ड बेस होता है और इस माइल्ड बेस को हम एज एंटी एसिड ले सकते हैं। नेक्स्ट कहाँ बेकिंग सोडा यूज होता है, बेकिंग सोडा यूज होता है टूथपेस्ट में, विच मेक्स आवर टीथ वाइट एंड प्लग फ्री।
Okay. Next is baking soda is used in the cleansing of ornaments that are made of silver. So what happens to silver ornaments? सिल्वर में क्या होता है, जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो सिल्वर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये एक एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट होती है, उससे रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिसकी वजह से सिल्वर के ऊपर क्या होता है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ठीक है, क्या होता है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है। तो इसलिए जो है सिल्वर को साफ करना जरूरी होता है। अब सिल्वर को साफ करने के लिए इसी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स carbon dioxide and sodium oxide on strong heating, thus it is used as fire extinguisher। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जा सकता है, जिसको हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसमें क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि ये फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है। सो व्हाट हैपेंस कि हमारा ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है दैट इज NaHCO3, व्हेनेवर सपोज इट इज रिएक्टेड विद HCl। ठीक है, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर मतलब सोडा है एसिड है, तो सोडा हमारा हो गया यहाँ पे NaHCO3, एसिड हो गया HCl, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा यहाँ पे, वाटर बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट इज इन न्यूट्रल स्टेट, NaCl जो है वो न्यूट्रल है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही कंबशन को रोकने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको जो है हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। Right? Let us jump to the next slide. What is it saying? We are going to discuss now about a new type of salt, that is sodium carbonate. If we talk about the preparation method of sodium carbonate, so sodium carbonate is formed from the thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate का जब thermal decomposition होता है तब sodium carbonate form होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड को हम CO2 NH3 वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, NH4Cl और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, दैट इज नोन एज वॉशिंग सोडा। राइट, so the sodium carbonate is obtained by this process is dry। अब यहाँ पे ड्राई का क्या मतलब है, एक बार पिछली स्लाइड में चल के देखते हैं। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के नीचे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनहाइड्रस। क्या लिखा है, एनहाइड्रस। ठीक है, तो एनहाइड्रस का क्या मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी किसी भी तरीके का हाइड्रेशन नहीं है, कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, बट एक्चुअली में सोडियम कार्बोनेट में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसमें एक्चुअली में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आइए समझते हैं। सो यहाँ पे जो है सोडियम कार्बोनेट जो हमारा यहाँ पे वॉशिंग सोडा है, इसमें एक्चुअली में यहाँ पे Na2CO3 के साथ साथ .10H2O भी होता है। ठीक है, ये .10H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो ये होता है, तो इसका एक्चुअल नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट decahydrate. Here 10 molecules of water is attached, so it is known as decahydrate, right? It is known as decahydrate. तो यहाँ पे जो इस वाले मेथड से ऑब्टेन हुआ है हमें Na2CO3, इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है, सो इट इज इन दी एनहाइड्रस फॉर्म। तो अगर हम बात करें कि जो पिछला प्रोसेस था उससे हमें जो है वो ड्राई सोडियम कार्बोनेट
ऑब्टेन होता है, जिसको हम कहते हैं सोडा ऐश, या तो हम उसको कहेंगे सोडा ऐश, और वी कॉल इट एज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, वी कॉल इट एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। और उसके बाद ये जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट हमें ऑब्टेन होता है, उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, देन इट इज फॉर्म्ड एज सोडियम कार्बोनेट, दैट इज in the hydrated form, or we call it decahydrate. Why? Because there are 10 molecules of water that are attached to it. Okay. So the next is use of sodium carbonate. How sodium carbonate is useful to us? It is used in the cleaning of clothes, especially in rural areas. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट केक पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। It is also used in removing permanent hardness of water. There are two types of water available, soft water and hard water. Soft water forms the foam और मिसली फॉर्म करता है, मिसली फॉर्मेशन शो करता है with the soap, but hard water does not forms the foam. Okay, so this hard water, अगर हमें इस hard water की hardness को हटाना है, so we use sodium carbonate, and the sodium carbonate is also used in glass and paper industries. Okay, next is the water of crystallization, जो कि हमने बात की थी कि वहां पे जब हम सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात कर रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि ये डेकाहाइड्रेट क्या है। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड टू इट, दैट टू वो लिखा हुआ था Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, जनरली प्लस लिखा हो तो हमें पता चलता है कि रिएक्शन हो रहा है, पर वहां पे क्या था, डॉट 10H2O था, तो दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, आइए थोड़ा डिटेल में समझते। सो ना मेनी सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है, ऐसे सॉल्ट्स जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स हो उन्हें हम कैसे सॉल्ट कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं। The water molecule present in salt is known as water of crystallization. क्या कहलाता है, water of crystallization. You can see here, this is the crystal form. So इस तरीके के कुछ crystals जो है वो बने होते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या था, सोडियम कार्बोनेट के साथ डॉट 10H2O था। दैट मीन्स 10 molecules of water are attached with sodium carbonate forming the crystals. Crystal form करते हैं। Okay, so the how this crystal is formed, for example copper sulfate हम अगर लें तो copper sulfate pentahydrate, that is CuSO4.5H2O। तो अगर हम इसे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या होता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, मतलब वाटर निकल जाएगा। ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं, ये जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं वो जो है इवेपोरेट हो जाएंगे और बचेगा क्या, सिर्फ CuSO4। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये कॉपर सल्फेट जो ये पेंटाहाइड्रेट है ये कैसे बनता है। सो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को जो है अगर हम डिकम्पोज करते हैं देन वी गेट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड वाटर, वेयर एज अगर हम कॉपर सल्फेट और वाटर को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपको ब्लू कलर के मिलेंगे, वेरएस जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है वो आपको व्हाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पीओपी। पीओपी दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज CaSO4.12H2O, दैट इज नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है इसलिए हेमीहाइड्रेट। ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सिर्फ दिखाने के लिए होता है, जबकि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4 के साथ जुड़ता है। सो यू कैन राइट इट हियर एज 2। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, या यूं कह ले कि बैलेंस्ड फॉर्मूला है कि when 2 molecules of calcium sulfate are there,
सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो यहाँ पर शेयर होता है, तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट को कितना मिलेगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलता है। ओके, सो पीओपी कैन बी टर्न्ड टू जिप्सम। ठीक है, यहाँ पे अब एक और बात आती है कि जो पीओपी है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, ये पीओपी जो है वो जिप्सम भी बन जाता है ना। व्हाट इज जिप्सम? जिप्सम क्या होता है? ठीक है, पीओपी हैज द फॉर्मूला ऑफ CaSO4.12H2O, right? CaSO4.12H2O, that is calcium sulfate प्लस वाटर है। ठीक है, तो पीओपी जो CaSO4.12H2O क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ पे जब हम इसको हाइड्रेशन करते हैं, या ये कह लीजिए कि हम यहाँ पे वाटर ऐड करते हैं, 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CaSO4.2H2O। दिस इज जिप्सम। ये क्या है, जिप्सम है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको याद दिलाऊं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी यूज्ड इन फॉल सीलिंग्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी यूज्ड टू मेक दी प्लास्टर्स। ठीक है, तो जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम पानी डालते हैं वो तुरंत जो है क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इंस्टेंटली हार्ड हो जाता है। सो हम इसको कई चीजों में यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टू मेक दी फॉल सीलिंग्स, और इनफैक्ट टू मेक दी आइडल्स। इनफैक्ट जो हमें प्लास्टर चढ़ता है, जब हमें बोन को एडजस्ट करके उस पर प्लास्टर चढ़ाना पड़ता है, जब बोन क्रैक हो जाती है या टूट जाती है, उसमें भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर्ड फॉर्म में है तो हम उसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, या उसका जो केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बट अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस सॉलिड फॉर्म में आ गया, आपने पानी मिला दिया उसमें, तब वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट .2H2O। ठीक है, तो वो कहते हैं हम जिप्सम। तो आई होप आई वॉज क्लियर ऑन दिस टॉपिक। आपने टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़े, आपने ये भी देखा कि कैसे कॉमन सॉल्ट से ही इतने अलग अलग तरीके के केमिकल्स हमें अवेलेबल हो जाते हैं एंड हाउ दे आर यूजफुल टू अस। सो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। In the next session, we are going to discuss some of the important multiple choice questions from this chapter. So stay tuned. Until then, take care. Bye-bye.